Welcome guys to this channel. So today uh, we are starting from where we left in the previous lecture. So in the last lecture we were discussing about minimum cost spanning tree and specifically Kruskal's algorithm. So in this lecture I will cover Prim's algorithm, which is also used to find MST. Okay. So those who want to learn MST and other stuffs related to greedy technique, they can refer my previous videos. So let us start MST part 3, minimum cost spanning tree. So Prim's algorithm. So in Prim's algorithm, we always used to take start from any vertex and take minimum edge. Start from any vertex and take minimum edge to construct minimum cost spanning tree MST. Okay. So let us do this process manually. So first of all, assume हम start करते हैं first node से. Okay, so node 1. So what are the adjacent? So adjacent is what, here I am writing adjacent. Okay, adjacent edges. So from 1, uh, 3 adjacent edges are there. So first one is what, 1 to 2, that is 10. 1 to 3, that is 30. 1 to 3, that is 30, and 1 to 4, which is 40. So what is the minimum? Minimum is this one, है ना? So choose this one. So in the first step हमने क्या choose किया यहाँ पे? 1 से 2 we choose with weight, each weight as 10. Now from both, so from 1 and 2 choose the minimum. So from 1 and 2, from 1 and 2. तो 1 से हम देखेंगे तो 1 से 2 ऑलरेडी कवर हो चुका है, 1 से 3 और 4. सो 1 से 3 एंड 1 से 4, और 2 से भी ऑब्जर्व करेंगे. 1 से 3 कितना है? 1 से 3 इज 30 एंड 1 to 4 इज व्हाट? 1 to 4 इज 40. एंड फ्रॉम 2, so 2 1 is already over. 2 to 5, 3 and 4. So 2 से 3, 4 and what? 5. Okay, so 2 से 3 कितना है? 2 से 3 it is 50 and 2 to 4 it is 60 and 2 to 5 is what? 70. So what is the minimum? Minimum is this 30. Okay, so choose this. So just change the color. तो यहाँ हमने इस 10 को चूज किया and then again we are choosing what? Minimum is what? 30. So this 30. Okay, so now then what will be the result after this step? So the resultant spanning tree is 1 to 2 is already there with weight 10 and 1 to 3 with weight 30. So 1 to 3 with weight what? 30. Okay, now again once again take adjacent. Okay, so adjacent from what? 1, 2 and 3. तो अगर हम 1 से ऑब्जर्व करें तो फ्रॉम 1, 1 2 और 1 3 ऑलरेडी हो चुका है.
1 से remaining is 4. So 1 to 4 is what? 1 to 4 is 40. Okay, now after that 2 से हम ऑब्जर्व करते हैं. So what about 2? 2 से ऑलरेडी क्या हो चुका है? 2 से 1 हो चुका है ना. 2 से 3, 4 and 5. So 2 से 3, 2 to 3, 2 to 4 and 2 to 5. So 2 से 3 कितना है? 2 से 3 is 50. 2 to 4 is what? 2 to 4 is 60 and 2 to 5 is 70. Now next is what? Next is 3. So 3 से कहाँ कहाँ पॉसिबल है? 3 से 1 ऑलरेडी ओवर हो चुका है. 3 से 2 ऑलरेडी 2 3 और 3 2 सेम है. 3 to 4, 4 to 3 already same है. And okay, fine. So among these all, what is the minimum? So minimum is what? Minimum is, अगर हम 1 से 2 से और 3 से कलेक्टिवली देखेंगे, so 1 से is 40, 2 से is 50 and 3 to 4 is 20. 3 to 4, yes, 3 to 4, 3 to 4. So 3 to 4 is what? 20. Okay, so now among these all, what is the minimum? Minimum value is again from 3 to 4. So this is the minimum. So just take this minimum. Now what will be the resultant tree? Resultant tree will be 1 2 3 and 4. So after this step, the resultant spanning tree is 1 2 3 and 4. This is 10 and this is what? This is 30. So this is 30 and this is 20. Okay, so now from uh, 1 2 3 and 4 कलेक्टिवली हम देखेंगे. ठीक है, वी आर ऑब्जर्विंग कलेक्टिवली. मिनिमम एज देखना है जहाँ साइकिल क्रिएट ना हो, है ना. और एजेस कितने होना चाहिए? 5 नोट्स से तो 4 एजेस, 3 हो चुकी हैं, 1 मोर एज विल कम. सो फ्रॉम 1 देर इज नो चांस. फ्रॉम 2, यस, 2 possibilities, 1 possibility I think. From 2 to 5. So from 2 to 5 it is 70. And from 3, so 3 no possibility. And from 4, so from 4 also 1 possibility is there. From 4 to 5, and that is what? 80. Okay, from 4 to 5, 80. So now what is the minimum? Minimum among these is what? Minimum क्या है? Minimum is 70. So 70. So just choose that 70. So finally our resultant MST is what? 1 2 3 and this is 4 and this is 5. So it is 10 and 20. This is 30 and this is what? 70. So this is the resultant MST. So this is the final MST. So this is the resultant MST using Prim's algorithm.
with weight. Minimum weight is what? So it is 70 and 50, 60, 130. So the minimum weight is 130. Okay. So I hope that this is clear. Very simple process. कोई ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ में हमको क्या करना है कि सबसे पहले किसी भी पर्टिकुलर नोड से स्टार्ट करना है और उससे एडजेसेंट जो एजेस हैं उनमें मिनिमम सिलेक्ट करते जाना है, और अंडर द कंसिडरेशन दैट इट मस्ट बी एम एस टी, नॉट वायलेट द कंडीशंस ऑफ एम एस टी. ओके, साइकिल क्रिएट नहीं होना चाहिए, और है ना, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, और एन नोड्स कवर होना चाहिए. अगर वी नोड्स हैं, वी वर्टिसेस हैं, तो वी वर्टेक्स कवर होना चाहिए, और v minus 1 edges होना चाहिए, है ना. So finally this is now what about the time complexity. So let us analyze that also. So this is the algorithm. Okay, now one more important thing that अगर आप देख रहे हैं इस प्रोसेस में तो हमें कहीं भी डिसकनेक्टेड ग्राफ नहीं मिला है. ठीक है, डिसकनेक्टेड ग्राफ नहीं मिला है, मीन्स हमें ऑलवेज ट्री मिला है इस पूरी प्रोसेस में. ठीक है, अगर आप देखें इसमें तो यहाँ ये स्टेप्स हैं, लाइक दीज आर द स्टेप्स, दीज आर आवर स्टेप्स. सो इसमें हमें क्या मिला है? कनेक्टेड कंपोनेंट मिला है, दिस दिस, है ना, देन दिस, एंड आफ्टर दिस दिस, एंड देन दिस फाइनल. सो सारे के सारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स मिले, मीन्स दिस इज अ कनेक्टेड ट्री. और कनेक्टेड कंपोनेंट मीन्स फॉरेस्ट टाइप का नहीं है जो आपका क्रिस्कल्स एल्गोरिथम में था, वो फॉरेस्ट उस तरीके का सी नहीं है. Okay, so I hope that this is clear. Now we are actually moving to the algorithm of Prim's algorithm. So in Prim's algorithm we always get what? Tree means some connected graph is there. Okay, no forest, yeah, disconnected graph like Kruskal's. Okay, like Kruskal's algorithm. Okay, सो फाइनली वी आर एनालाइजिंग दिस. सो इसमें क्या है, देखिए, ऑब्जर्व करते हैं बड़े केयरफुली. प्रिम्स ग्राफ गिवन है, वर्टिसेस, एजेस एंड आर इज द इनिशियल, जहां से हमें स्टार्ट करना है, वर्टेक्स गिवन है. ठीक है, तो ये प्रिम्स यहाँ से स्टार्ट हुआ है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज गोइंग टू बी द एंडिंग पॉइंट, लास्ट. सो सबसे पहले क्या करना है हमको, सारे वर्टेक्स जो हैं उनके करस्पॉन्डिंग मिनिमम हम अज्यूम कर लेते हैं कि इन्फिनिटी है. ठीक है, जो भी एडजेसेंट है वहाँ से वो हम मिनिमम उसका इन्फिनिटी अज्यूम कर लेते हैं. सो फॉर ईच वर्टेक्स ए बिलोंग्स टू वर्टेक्स एट वी, सारे के सारे वर्टेक्स लेंगे एक एक करके, और उनके करस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू क्या अज्यूम कर लेंगे? इन्फिनिटी. सो दिस विल बी व्हाट? इन्फिनिटी. तो यहाँ दिख रहा है कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ वी टाइम. सो हियर ए डॉट मिनिमम का मीनिंग क्या है कि मिनिमम एजेस वेट्स अमंग ऑल एडजेसेंट एजेस. ओके, तो हर एक का करस्पॉन्डिंग मिनिमम हमने क्या अज्यूम कर लिया? सो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस? सो दिस विल टेक ऑर्डर ऑफ वी टाइम. एनालाइज वेरी केयरफुली. ओके, नाउ आफ्टर दिस, सो दिस आर डॉट मिनिमम, हमने स्टार्टिंग जो नोट था उसका मिनिमम क्या अज्यूम कर लिया है? 0. सो इट इज अ कांस्टेंट टाइम. नाउ क्यू क्रिएट किया हमने, दैट इज, है ना, क्यू क्रिएट किया विथ वी वर्टिसेस, है ना, और दिस की क्यू इज व्हाट? दिस इज मिन क्यू, है ना, मिन हीप. सो मिन हीप क्रिएट किया है हमने वर्टिसेस से. सो दिस इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ मिन हीप क्रिएशन. मिन हीप क्रिएशन यूजिंग, लेट अस सपोज बिल्ट हीप मेथड से हमने किया. सो बिल्ट हीप से, तो इसमें कितना टाइम लगेगा? दिस विल टेक ऑर्डर ऑफ वी टाइम. ओके, तो यहाँ अगेन इसका टाइम हुआ ऑर्डर ऑफ वी. नाउ अगर ये लूप हम ऑब्जर्व करें तो लूप ये कब तक रन होगा? वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी. ओके, तो जो हमने मिन हीप बनाया है, तो मिन हीप जब तक कि एम्प्टी ना हो. ओके, तो मिन हीप जब तक एम्प्टी ना हो तब तक हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे. सो दिस लूप विल रन हाउ मच टाइम? फॉर some v time. Okay, v time because vertices, number of vertices. Okay, so this loop will run
v time, v time. Okay, now after this, सबसे पहले हमने क्यू चेक किया, क्यू इज नॉट एम्प्टी, तो उसमें से एक्सट्रैक्ट किया मिनिमम। तो मिनिमम एक्सट्रैक्ट किया हमने, मिनिमम एक्सट्रैक्ट करके उसका मिनिमम एक्सट्रैक्ट करके उसको एक्स अज्यूम किया। तो ये जो एक्सट्रैक्शन है इसमें कितना टाइम लगेगा, दिस विल टेक व्हाट, लॉग वी टाइम। तो यहाँ हमें कितना लगा, यहाँ हमें लगेगा लॉग ऑफ वी, क्योंकि मिनिमम कर लिया एक्सट्रैक्ट, बट उसको एडजस्ट होने में कितना टाइम लगेगा, लॉग वी टाइम। सो दिस इज एक्सट्रैक्ट मिनिमम। ओके, नाउ अगर हम इसको ऑब्जर्व करें दिस पार्ट, सो फॉर ईच y बिलोंग्स टू एडजेसेंट ऑफ x। सो व्हाट इज एडजेसेंट, तो y हमने यहाँ से y लिया हमने, x जो हमने अज्यूम किया था, x जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है मिनिमम अभी करेंटली, है ना, उसके आई थिंक नाउ इट इज विजिबल। ओके, तो यहाँ हमने जो q से हमने मिनिमम जो एक्सट्रैक्ट किया है, मिनिमम हमने डिलीट किया है, तो वो x अज्यूम किया है, तो ये क्या है, वर्टेक्स। तो इस नोड के इस वर्टेक्स से जितनी भी एडजेसेंट हैं, एक एक करके हम एडजेसेंट देखेंगे। तो हर एक एडजेसेंट को मान रहे हैं कि y, तो y मीन्स एक नोड है, ठीक है। तो ये एक नोड हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, फिर फर्दर दूसरा नोड एक्सट्रैक्ट करेंगे, तीसरा करेंगे। तो ये लूप भी ऑलमोस्ट कितने टाइम से रन होगा, दिस लूप विल ऑलमोस्ट रन व्हाट, हाउ मच टाइम, also v time. Okay, so this loop will also run v time. Observe very carefully, है ना। why I am saying v क्यों करेगा, क्योंकि ये हमने पहले तो एक्सट्रैक्ट किया मिनिमम, तो हमारा जो क्यू था या जो हमारा मिन हीप था उससे हमने मिनिमम निकाला, तो इससे क्या निकलेगा, वर्टेक्स निकलेगा। फिर उस वर्टेक्स के हमने एडजेसेंट देखे एक एक करके, तो वर्टेक्स के एडजेसेंट क्या होंगे, वर्टेक्स के एडजेसेंट हमारे जो होंगे दैट विल ऑल्सो वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स होंगे, तो एक एक करके सारे वर्टेक्स कवर कर रहे हैं, ठीक है, वाई, हर एक वाई को चेक करेंगे, तो ये वी टाइम्स रन होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। आफ्टर दैट फिर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि वाई बिलोंग्स टू वी, वाई हमारा वी से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। जो भी वाई हम यहाँ से कर रहे हैं वाई वी से, वाई वी से, बिकॉज अगर क्यू से बिलोंग करना चाहिए, अगर ये क्यू में नहीं है, मिन हीप में नहीं है, दैट मीन्स उसको हम कंसीडर कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिन हीप से बिलोंग करना चाहिए। देन आफ्टर दैट कि वेट है जो x कॉमा वाई का, एसोसिएटेड एज का जो वेट है, वो उस y के जो मिनिमम अज्यूम किया था हमने, है ना, इन्फिनिटी या जीरो, उससे क्या होना चाहिए, या जो अपडेट हो चुका है उससे लेस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वेट लेस है तो हमें वेट लेस वाला कंसिडर करना है, तो y के मिनिमम को हम क्या अज्यूम कर देंगे, y मिनिमम इक्वल टू w। तो ये जो यहाँ ऑपरेशन है, दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन, here it is known as this kind of operation, this is what, this is decrease key operation, this operation is decrease key operation। okay, and decrease key operation यहाँ हम की decrease कर रहे हैं, तो this will also take what, order of log v time। की डिक्रीज करने का मतलब है कि अगर हमने मिनिमम कंसिडर कर लिया उसको, दैट मीन्स ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब है ये हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया। ये ऑपरेशन परफॉर्म करने का मीन्स है कि हमने वहाँ से जो क्यू है या जो हमारा मिन हीप है वहाँ से हमने डिलीशन परफॉर्म कर दिया, मीन्स डिक्रीज कर दी वहाँ से एक की, तो मिनिमम निकल के आ जाएगा, डिक्रीज हो गया है ना, तो क्यू जो मिन हीप है वो अपडेट हो जाएगा। तो मिन हीप अपडेशन कितना टाइम लगेगा, लॉग वी टाइम, बिकॉज मिन हीप किसका क्रिएट किया है, वर्टेक्स। Okay, so now I think it is observable to you। Okay, so this so now we are analyzing the time complexity। So what will be the time complexity, so time complexity of Prim's algo using min heap or otherwise binary heap, binary heap। Okay, so what will be the time in that case, time is, observe very carefully, so here time is order of v, so it is v, okay, order of v एंड प्लस अगेन ऑर्डर ऑफ v। ये ऑर्डर ऑफ v क्या है कि जो हमने मिनिमम उसके इन्फिनिटी सेट किए, दिस इज ऑर्डर ऑफ v फर्स्ट फॉर लूप। ओके,
एंड आफ्टर दिस अगेन हमने क्या किया, मिन हीप क्रिएट किया. सो दिस इज मिन हीप क्रिएशन टाइम ऑर्डर ऑफ. नाउ ये वाइल लूप रन होगा तो ऑल दिस कोड इज इनसाइड दिस वाइल लूप. तो v इंटू लॉग v into log v. Observe very carefully. So this v into log v and plus v into log v, and then again this v into log v. Okay, this inner loop. So this v into what, log v. ओके, आई होप यू आर गेटिंग कि ये जो सारा का सारा कोड है ये एक्सट्रैक्ट मिन से लेके पूरा डिक्रीज की तक ये किसके इनसाइड लिखा हुआ है, वाइल लूप के. तो ये v टाइम्स तो होगा, v टाइम्स किसके, log v के. और अदरवाइज जस्ट राइट नॉट लाइक दिस, राइट इट लाइक दिस, दैट v टाइम्स ऑफ जो भी इनसाइड टाइम लग रहा है वो लिख देते हैं. इनसाइड इज व्हाट टाइम, सो दिस एक्सट्रैक्ट मिन, सो log v टाइम. So this is log v and plus this is v into decrease key means log v. So v into log v. Okay, so this is v into log v. So now just multiply. So this is v plus v and plus v log v and plus this v square and log v. एंड फॉर डेंस ग्राफ, अगर डेंस ग्राफ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंस ग्राफ, डेंस ग्राफ मीन्स एजेस उसमें है ना, सफिशिएंट नंबर ऑफ एजेस हैं, या है ना मैक्सिमम एजेस हैं. तो देन वी स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू व्हाट, ई एजेस. So then in that case what is will be the time, v plus v log v and plus this v square will be replaced with e, so it is e log v. Okay, so what will be the time, take one more step, v plus v and v plus e and taking log v as common. Okay, so this is the time complexity for, so time complexity is going to be order of, okay, v plus e and log v, or otherwise we can also write it as order of e log v. So these both things are correct. Okay, because v plus e में मैक्सिमम अगर हम टर्म अज्यूम करें तो इट डिपेंड्स बेसिकली, है ना, कि अगर वर्टिसेस मीन्स अगर डेंस ग्राफ है तो देन e log v, otherwise v plus e log v, it is sufficient. Okay, so this is the case of time complexity of Prim's algorithm. So this is also correct, this is also correct. Okay, also correct, and this is also correct. Okay, but one more analysis is there. If we use what, Fibonacci heap. Okay, so time complexity using Fibonacci heap. ओके, तो फिबोनाची हीप में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो यहाँ पे जो ये स्टेप था, दिस पर्टिकुलर स्टेप जहाँ ये डिक्रीज की ऑपरेशन था, है ना, दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन, दिस वी ऑपरेशन. ओके, तो ये अमर्टाइज्ड एनालिसिस में होगा, विच इज नॉट देयर इन सिलेबस ऑल्सो, है ना. अमर्टाइज्ड एनालिसिस जो होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, ऑल्सो दीज ऑल थिंग्स आर अवेलेबल इन द कोरमैन बुक. ओके, इफ यू रिफर, सो वो जो टाइम होगा दैट विल बी कांस्टेंट टाइम. कांस्टेंट टाइम इज इट इज ऑर्डर ऑफ वन टाइम, है ना. तो इस केस में क्या हो जाएगा, देन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ प्लस वी लॉग वी. ओके, तो यहाँ जो ई ये लॉग वी है, जो लॉग वी टाइम किसका था, ये द टाइम फॉर डिक्रीज की. सो इन दिस केस डिक्रीज की ऑपरेशन विल टेक व्हाट,
constant time in the amortized analysis. Okay, so this is the time complexity. So I hope that this is clear. This is the time complexity of Prim's algorithm. Okay, so with the use of what? With the use of your binary heap or min heap, or otherwise with the use of Fibonacci heap. So this is the time complexity. So we saw these things. Now one question which gives you some important notes regarding that. So find number of minimum cost spanning trees for the following graph. Okay, so simple, we can easily draw min. So first minimum is what? 2. So it is A to B 2, and then after 3, so then A to C, so 3, then 4, yes, C to D, it is 4, एंड 5 लेंगे तो वो लूप क्रिएट हो जाएगा, तो यू कैन टेक फ्रॉम बी टू ई और डी टू ई, सो टू पॉसिबिलिटीज आर देयर. ओके, सो दैट्स व्हाई देयर आर टू, दैट्स व्हाई देयर आर टू स्पैनिंग ट्रीज पॉसिबल. That's why there are two spanning trees possible. So this is 2, 3, 4, and finally if you अगर आप यहाँ B से E consider करते हैं, so then it is 6, and again from D to E अगर आप consider करते हैं, so it is also what? It is also 6. Okay, so two spanning trees possible. So here two spanning trees possible. Two spanning trees possible. तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट है कि हाउ दीज टू स्पैनिंग ट्रीज आर पॉसिबल, है ना. तो अगर यहाँ पे फर्स्ट नोट इज फॉर द गिवन ग्राफ मोर देन वन मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री मे बी पॉसिबल, बट मिनिमम कॉस्ट इज सेम. सो एक ग्राफ के लिए, गिवन ग्राफ के लिए मोर देन वन एम एस टी पॉसिबल है. ओके, मोर देन वन एम एस टी पॉसिबल. सो दिस इज वॉट, दिस इज एम एस टी. सो दिस इज एम एस टी. सो मोर देन वन एम एस टी पॉसिबल, लेकिन उनका कॉस्ट क्या होगा? सेम होगा. जैसे यहाँ देखें, है ना, कॉस्ट आर सेम. कॉस्ट कितना है यहाँ पे? जैसे यहाँ 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 and 6 15. So again 2, 3, 4 and 6 is going to 15. So cost are same, है ना. So two spanning trees possible, but costs are same. Okay, so there is no change in the cost. Now next important point is, for the given graph, if at all more than one minimum cost spanning tree is possible, then in the given graph some edge weights are repeated. Definitely अगर किसी पर्टिकुलर गिवन ग्राफ के मोर देन वन स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है, दैट मीन्स एज के जो वेट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं. यहाँ पे देखिए एज के वेट्स रिपीट हो रहे हैं. यहाँ 6 6 2 टाइम है ना, तो इसके दो ट्रीज पॉसिबल. तो अगर एक से ज़्यादा स्पैनिंग ट्रीज हैं, देन एज वेट्स आर रिपीटेड. नाउ नेक्स्ट इज फॉर every connected graph at least one MST is possible. Okay, unique MST is possible for every connected graph at least. Okay, so what is the meaning of at least? So the meaning of at least means minimum one. So MST is possible, minimum one MST is possible. Okay, so this is a golden rule that every connected graph at least one spanning tree, minimum spanning tree is possible. And अगर किसी पर्टिकुलर ग्राफ की सारे के सारे वेट्स जो हैं जिसके वो यूनिक हैं और डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं, देन यूनिक एमएसटी इज पॉसिबल. ओके, रिपीटिशन या मल्टीपल का ऑप्शन कब आता है? जब वेट्स रिपीट करने लगे. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, दिस इज देयर आर सम इम्पॉर्टेंट, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट नोट्स, है ना. Now next is what? Next are few important questions which were asked in some previous gate examination. So the very first question is, understand very carefully first of all.
So an undirected graph G has n nodes and all edge weights are distinct. कोई अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है एन नोट्स के साथ और सारे के सारे एजेस के वेट क्या है, डिफरेंट है. ओके, लेट ई मिन बी द एज विद मिनिमम, है ना, वेट, एंड ई मैक्स बी द एज विद द मैक्सिमम वेट. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल. ओके, सारे के सारे वेट डिफरेंट हैं. जो मिनिमम वेट है वो ई मिन है, जो मैक्सिमम वेट है वो ई मैक्स है. देन फॉल्स हमें फाइंड करना है. एवरी मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ओके, every minimum spanning tree must contain what, e min. Yes, definitely e min must be there, है ना, e min must be there. Let us create a scenario according to this question. Let us suppose 1 2 3 4, no, let us suppose this 5. Okay, so 10 20 30, let us suppose this is also there, 40 50 and 60. So what is the spanning tree? Spanning tree is like this: 1 to 10, and this is 20, and after this is 30, 40 is not there, will not be there, and 50. Okay, तो अगर आप इसमें केयरफुली ऑब्जर्व करें, सो यहाँ पे दिस इज व्हाट, दिस इज ई min, and this is what, E max. Okay, E min and E max. So E min every MST, every minimum MST, or this is what, this is written as every MST. Every MST must contain E min. Yes, of course, E min will be there. So this is the E min. E min. Okay, so this is a valid point. That's why this point is valid. This is correct one. Now, if Emax is an MST, then its removal must disconnect G. Okay, so if Emax in MST, let us create a scene whether it is correct or not. Emax MST में होना चाहिए. So what are the possibility? So this is the possibility for the first, and this is the possibility for second. So graph is given like same graph ले लेते हैं, MST ले लेते हैं हम, ठीक है. So this is MST consider कर लेते हैं. Let us suppose 1 2 3 4 and 5. This is 10 20 30 and then let us suppose 60. ओके, तो अगर हम क्या करेंगे कि अगर ई मैक्स है, यहाँ पे ई मैक्स है, डेफिनेटली यस, ई मैक्स इज दिस इज द ई मैक्स, दिस इज व्हाट ई मैक्स. तो अगर हम इस ई मैक्स को एम एस टी में है, यस दिस इज अवेलेबल. अगर इसको रिमूव करेंगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा. यस डेफिनेटली, अगर आप इसको रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है, देन द ग्राफ विल बी डिस्कनेक्टेड. सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो करेक्ट. नेक्स्ट इज, so this is for second, and next third is no minimum cost spanning tree contain Emax. ऐसा तो है नहीं, ये अभी देखा हमने कि ये जो MST है इसमें Emax है, ठीक है. सो इट इज पॉसिबल, है ना, दैट मीन्स इट इज इनकरेक्ट. ओके, फॉर क्रॉस चेक पर्पस यू कैन रेफर दिस. सो G हैव यूनिक MST. यस ऑफ कोर्स, सारे के सारे वेट जो है डिफरेंट है. Why G has unique MST? Because weights of the given graph are distinct. Because weights of the given graph are distinct. Okay, so this is the case, है ना. तो very simple. Okay, fine.
नाउ लेट अस मूव. सो वी नो दैट अगर किसी ग्राफ का यूनिक एमएसटी है, दैट मीन्स उस ग्राफ में सारे के सारे वेट्स जो है वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे, है ना. देयर दिस मे नॉट बी चांस दैट दे हैव सम वेट्स, कॉमन वेट्स, है ना, और सम रिपीटेड एज वेट्स. ओके, so let us do one more question. Now the question says, firstly understand very carefully, because these are very important concepts. Overall MST is very important with respect to weight. So let W be the minimum weight among all age weight in a connected graph G, and E is a specific weight, specific age of weight W. तो यहाँ ये कंसिडर किया है कि अज्यूम किया है कि लेट डब्ल्यू बी अ मिनिमम वेट अमंग ऑल एज वेट इन अ कनेक्टेड ग्राफ. कोई कनेक्टेड ग्राफ है जिसमें डब्ल्यू क्या है, मिनिमम एज वेट है. ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ कनेक्टेड ग्राफ. सो कनेक्टेड ग्राफ like this. Okay, let us suppose 10, 10, 10, 10, and this is, let us suppose 20, and this is 30. Okay, intentionally I am taking repeated ages. ओके, सो इसमें क्या कह रहा है कि W जो है वो मिनिमम वेट. सो W यहाँ कितना है इस केस में हमारा, W इज व्हाट, W इज 10. और स्पेसिफिक W वेट का एक स्पेसिफिक एज कंसिडर कर लेते हैं. लेट अस सपोज दिस इज E, वी आर अज्यूमिंग. देन विच वन इज ट्रू, E मे बी देयर इन MST. यस ऑफ कोर्स, अगर आप रैंडमली कोई भी कंसिडर करेंगे यहाँ पे तो E मे बी देयर, है ना, बट इट इज नॉट गारंटी दैट E इज ऑलवेज देयर, बिकॉज मिनिमम वेट्स जो है रिपीटेड है, तो पॉसिबिलिटी, ये दिस इज नॉट अ कंपल्सन दैट ई मस्ट बी देयर. ई मे बी देयर, यस ऑफ कोर्स ई मे बी देयर. ओके, ई मे बी देयर, बिकॉज क्वाइट पॉसिबल दैट वी ड्रॉ वन एम एस टी लाइक दिस, है ना. हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया कि ई मे बी देयर, लाइक ऐसा किया. ठीक है, देन हमने ये भी लिया, देन आफ्टर दैट ये लिया हमने 10, and then हमने ये भी लिया 20. So this is the MST. So this E is there. This is what? This is E. So E may be there. May be there. May be there in MST. Okay. Now if E is not in MST, then all ages have same weight W in that cycle. Okay, fine. अगर E वहाँ पे नहीं है, E is not there, है ना. If E is not there in MST, अगर E MST में नहीं है, that means अगर हम ऐसा अज्यूम कर लें कि E is not there in MST. So E is not there means 1, 2, then 3, then it is 4. So E is not there. Let us suppose it is not there. Then it is 10, and then it is 20. So E is not there. E is not in MST. So then all ages have same weight in W in that cycle. तो वहाँ जो ओरिजिनल ग्राफ है वहाँ पे सारे के सारे वेट्स सेम वेट होंगे उस साइकिल में. सो सी दिस एंड दिस ऑल्सो. ओके, दैट दिस इज द साइकिल. ओके, साइकिलिंग इन दिस पर्टिकुलर एज. तो उस पर्टिकुलर एजेस हैव सेम वेट इन दैट साइकिल. तो यहाँ एक साइकिल है, वहाँ पे 10 10 10 सारे के सारे W वेट के एज, ठीक है, साइकिल क्रिएट कर रहे हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस इज ट्रू. यस ऑफ कोर्स इट इज ट्रू. And important. Now every MST should contain an age with weight W. Yes, W is the minimum weight. तो minimum weight तो MST में होगा ही होगा definitely. Okay, so this is also correct that every MST should contain an age with weight W, because W is what?
weight W means minimum age, and age with weight W means minimum age, minimum weight age, minimum weight age. So it must be there in MST. But every MST, next point is that every MST should contain E. Yes, no. Every MST should not contain E. This is an MST, but it is not containing E. It is not a compulsion. So like this, you can observe. So that's why it is what incorrect. This is not correct. Okay. So I hope you got the concept. This is an important concept. All these questions are important. And finally, we are at the end of this lecture, and we covered Prim's algorithm. So steps available in Prim's algorithm, and also saw that Prim's algorithm, in the Prim's algorithm, we don't get any kind of disconnection. Means forest kind of scene we don't get. We always get a connected graph. है ना? In the conversion from the given graph to the minimum cost spanning tree or MST. Okay, and also saw the algorithm of Prim's and analyzes that algorithm and found the time complexity of Prim's algorithm is going to be using min heap is going to be order of V plus E log V, or otherwise E log V, है ना? Order of E log V. Or if we use Fibonacci heap, then the time complexity is what? E plus V log V. Okay, and also saw some important terminologies and some important concept related to the MST, that a few concepts like if graph is having repeated age, then there may be possible that more than one MST is there, and graph is having all the weights as unique in the given problem, then unique MST, we will get a unique MST. Okay, and some important concepts. So I hope you enjoyed this lecture. And if you are learning from these videos, then please like, subscribe, and share this channel with your learning community so that other will also get benefited by the same. And happy learning to all of you. Stay safe.